Hello everyone, this is Murtaza Kai Johar, and the topic we have selected is the governance of complex retiral policies, and this problem is faced by the Hub Power Limited, also known as HUBCO. For this problem, we have an interview with Adnan Shabir, an assistant manager Total Rewards at HUBCO Limited. HUBCO was established in 1994 in the Kund region of Hub Balochistan. Till now, they have capacity to generate around 3000 megawatts that can provide energy to the national grids. The vision of the HUBCO is fueling lives through energy. The mission of the HUBCO is to be the top-oriented company at the international level that can provide sustainable energy according to the safety standards. The core values of the HUBCO are passion, dedication, friendly, enjoyment and renewal. The goal of the HUBCO is to provide affordable energy according to the economic condition of Pakistan. HUBCO have 5 subsidiaries and 3 associates. In their subsidiaries, it include Lareb Engineering Limited, Lareb Energy Limited, Hub Power Holdings, Hub Power Services, Narowal Energy Limited, and Thar Energy Limited. In their associates, they have 3 companies: Hub Power China Generation Company, Sindh Agro Coal Mine Company, and Thalnova Energy Limited. Now we'll talk about the problem. Problem क्या है? Problem ये है कि HUBCO की बहुत सारी सब्सिडरीज हैं और सबके डिफरेंट रिटायरल बेनिफिट्स हैं. अगर एक एम्प्लॉय इनका एक कंपनी से लेकर दूसरी कंपनी में अगर ट्रांसफ़र होता है तो प्रॉब्लम ये आता है कि कौन सी रिटायरमेंट पॉलिसीज़ पे इम्प्लीमेंट करवाएं. अगर कोई जिस तरह हम बात करें, इनके पास अगर हम सिंध पावर चाइना और सिंध एंग्लो कोल माइन को हटा दें क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती है अपने हेड्स के अंडर, उसके बाद बचती हैं इनके पास 7 कंपनीज. HUBCO को मिला के 7 कंपनीज. अब 7 कंपनीज में से कुछ कंपनियों के रिटायर बेनिफिट डिफरेंट हैं. अगर हम HUBCO की बात करें तो HUBCO में ये होता है कि दे प्रोवाइड 1 बेसिक सैलरी फॉर द 5 to 10 years of the experience. They provide 1.5 of the basic for the 10 to 15 year of the work, and they provide 2 basic for 15 years and onwards. And they provide 10% of the defined contribution to the provident fund, and they don't have the pension policy. And secondly, अगर हम बात करें Lareb Engineering Limited, उसमें ये है कि 6 to 12 years और the 6 to 12 years अगर Lareb को नहीं, अगर हम बात करें Hub Power Holdings की, उसमें यह है कि 6 to 12 years of service they provide 0.5 of the basic, and for 12 onwards they provide 1 basic in their gratuity fund, and they provide same 10% of the provident fund in the defined contribution, and they provide 10% of the defined contribution in their pension funds. अब प्रॉब्लम यह होती है कि अगर एक एम्प्लॉई जो HUBCO का एम्प्लॉई है या Lareb इंजीनियरिंग का एम्प्लॉई है, अगर वो हब पावर सर्विसेज में जाएगा तो उसकी रिटायर बेनिफिट डिफरेंट होंगे. अगर कोई एम्प्लॉई अगर किसी अच्छे लेवल से अगर छोटे लेवल पे जाएगा तो एम्प्लॉय का मोरल डाउन होगा, क्योंकि ऐसी बात है उसको वहाँ पे 2 बेसिक मिलने थे 5 to 10 years पे और यहाँ पे आके उसको 1 मिल रहा है. सेकेंडली, अगर कोई एम्प्लॉय अगर जिसको कम बेनिफिट मिल रहे थे अगर वो अच्छे बेनिफिट की तरफ जाएगा तो इन दी एंड कंपनी का लॉस होगा, क्योंकि एम्प्लॉय को 1 मिलना था, 1 बेसिक मिलनी थी, उसको वहाँ जाके उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से 2 मिलने थे. तो इस सारे प्रॉब्लम को अलाइन करना था एक फंड के अंडर, एक फंड जो HUBCO पेरेंट कंपनी होल्ड करे, क्योंकि HUBCO का जो है वो HR जो है वो सेंट्रलाइज एक HR है, तो सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो HR के अंडर एक ही विंडो के अंडर आनी चाहिए. तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 बेसिक कैटेगरीज थी जो इनको अलाइन करनी थी. सबसे पहली कैटेगरी ये है कि एक म्यूचुअल फंड हो, एक ही फंड हो जो पूरे HUBCO को अलाइन करे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि HUBCO की इस तरह बात करें कि Lareb एनर्जी लिमिटेड जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरफ है, वो लगता है पंजाब का रीजन. उसकी बात करें थर एनर्जी लिमिटेड जो सिंध के अंडर आती है, HUBCO इटसेल्फ बलूचिस्तान के अंडर आती है. तो
डिफरेंट प्रोविंसेस की वजह से डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं, इनको अलाइन करना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो उनके ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सबको अलाइन करना है। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि एम्प्लॉय का मोरल डाउन ना हो। अगर एम्प्लॉय अगर किसी लो लेवल जहाँ पे इसको 0.5 बेसिक मिलनी थी उसको 1 मिल जाती है तो एम्प्लॉय कंपनी को लॉस होगा, जहाँ पे उसको 2 बेसिक मिलनी थी उसको 1 मिल रहा है तो एम्प्लॉय का मोरल डाउन होगा, और मे बी वो एम्प्लॉय इस रीज़न को छोड़ते हुए कंपनी को लीव कर देंगे क्योंकि उसने इतना टाइम लगाया कंपनी के अंदर और उसको चीज़ें नहीं मिल रही उसके मुताबिक, तो उसका मोरल डाउन होगा। थर्ड ये कि कंपनी को लॉस ना हो, क्योंकि अगर इनको सारी रिटायर पॉलिसीज अलाइन करनी है तो कंपनीज को भी अपना फ़ायदा देखना है, क्योंकि कंपनी अपना लॉस तो नहीं करेगी। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए सबसे पहला प्रॉब्लम क्या था कि सारे फंड को अलाइन करना है, क्योंकि डिफरेंट प्रोविंसेस की बात हुई। सबसे पहले फंड को अलाइन करने के लिए सबसे इजी वे जो उन्होंने निकाला है यहाँ पे वो है कि एक कंसल्टेंट को हायर करेंगे, एक कंसल्टेंट फाइनेंशियल कंसल्टेंट जो इन चीज़ों में एक्सपर्ट होता है, जिन्हों अकॉर्डिंग द व्हाट इज़ द लॉ ऑफ द पाकिस्तान, कहाँ सिंध में कौन सा लॉ होता है, पंजाब में कौन सा लॉ होता है, बलूचिस्तान में कौन सा लॉ होता है, उन सारे लॉज को स्टडी करके उनको पता होगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड है जो एक फ़ंड इस्टेब्लिश करेंगे जिसमें सारे कंपनी जो इसमें अलाइन हो जाएंगी और इस फंड के ज़रिए सारे रिटायर बेनिफिट उसी को मिलेंगे। सेकंड हम बात करें कि एम्प्लॉय के मोरल की बात हुई थी। अब यहाँ पे कंपनी ने एक काम करना है कि एक सेंटर पॉइंट लेना है। सेंटर पॉइंट को लेने के बाद है तो इसमें एक काम करते हैं मिनिमम पॉइंट इन्होंने अलाइन किया है यहाँ पे कि एक बेसिक सैलरी फॉर द ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, जितने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होंगे उसकी मल्टीप्लाई बाय उसकी बेसिक सैलरी हो जाएगी, करंट बेसिक सैलरी। अब जो एम्प्लॉय जो है वो हायर रेट पे थे, अब उनका क्या होगा, अब उनको भी तो उन्होंने अलाइन करना है, उनका भी मोरल डाउन नहीं करना, तो उन्होंने ये करना है। अब ये करेंगे वो लोग कि जितना परसेंट ऑफ अमाउंट उसको उसकी ग्रेचुटी में जा रहा था वो सारा वो परसेंटेज ऑफ अमाउंट उसकी सैलरी में उसको कंपनसेट करेंगे। अब सैलरी में कंपनसेट करेंगे तो एम्प्लॉय को ही बेनिफिट हो रहा है, उससे एम्प्लॉय के ही पैसे एम्प्लॉय को ही मिल रहे हैं, तो इससे एम्प्लॉय की सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो जाएगी और एम्प्लॉय भी इसको हैप्पीली एक्सेप्ट करेगा। अब थर्ड बात करें तो इसमें आता है डिफाइंड बेनिफिट एंड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन। अब कंपनी जो है वो डिफाइंड बेनिफिट पे पहले अपने फंड रखवा रही थी, अब वो आ रहे हैं डिफाइंड कंट्रीब्यूशन की तरफ। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पे आने का इनका फ़ायदा ये है कि इनके फंड पे जो है वो फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि डिफाइंड बेनिफिट में ये होता है कि कंपनी जो होती है अपना अमाउंट एक फ़ंड में रखवाती है। फ़ंड किसी भी फॉर्म में होता है, स्टॉक की फॉर्म में भी हो सकता है या कहीं पे इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, तो इसमें होता है ईजी इन और ईजी आउट। आप कहीं पे भी स्टॉक में इन करो, स्टॉक कभी भी इसको एंड कर लो। लेकिन डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में ये होता है कि इट्स जस्ट लाइक अ बैंक टर्म डिपॉजिट, कि आप बैंक के अंदर टर्म डिपॉजिट करते जाओ मंथली बेस पे, क्वार्टरली बेस पे, व्हाट्सएवर जो भी इनको बैंक ईजी लगता हो उसमें लोग फॉर्म डिपॉजिट करते जाएंगे और उसकी बेस के ऊपर इनकी अमाउंट सारी सेफ होती जाएंगी। और जब एम्प्लॉय कंपनी को लीव करेगा तो वो हर फंड जो है वो जो एक्यूमुलेट हुए थे एक फंड के अंदर एम्प्लॉय को मिल जाएंगे। तो इससे ये होगा कि कंपनी को कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि अगर स्टॉक पे इन्वेस्ट करता है तो स्टॉक का प्राइस जब एम्प्लॉय लीव कर रहा हो तो उस टाइम पे स्टॉक का प्राइस गिरा हुआ है तो कंपनी को अपनी जेब से देना पड़ेगा, तो कंपनी का एक टाइम पे आके लॉस होगा। तो कंपनी भी अलाइन हुई इसमें और सारे इसमें एम्प्लॉयज़ भी अलाइन हुए। ये 3 बेनिफिट थे ये 3 तरीके थे जिसकी वजह से आपको जो है वो अपनी रिटायर पॉलिसीज़ को अलाइन करके एक विंडो पे आ जाएगी, एक फंड हो जाएगा। इसकी वजह से फ़ायदा ये होगा कि इनको मैनेजमेंट आसान हो जाएगी, इनका ऑडिट आसान हो जाएगा, इसमें HR सुकून में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आके HR को देखना है कि कंपनी का बेनिफिट भी देखना है और एम्प्लॉय का बेनिफिट भी देखना है। उन्होंने बैलेंस रख के चलना है, ना तो एम्प्लॉय को ज़्यादा बेनिफिट देना है ना ही एम्प्लॉय को कम बेनिफिट देना है, क्योंकि बैलेंस HR का रोल ही एक कम्युनिकेशन का है दोनों के दरमियान, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय के दरमियान। अब इसमें हम लेसन लर्न की बात करें, लेसन लर्न इसमें ये हमें मिलता है कि नॉर्मली कंपनीज जो है वो अपने बारे में सोचती हैं, क्योंकि कंपनी को ये होता है कि कंपनी का बेनिफिट हो। ओनर्स एंड टॉप मैनेजमेंट की बात करें, दे ऑलवेज लुक फॉर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट। एम्प्लॉय कहीं ना कहीं सेकंड पे चला जाता है। तो HR एक डिपार्टमेंट होता है जिसको कहते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स, जो अपने एम्प्लॉय की कदर करता है, एम्प्लॉय के बारे में सोचता है और मैनेजमेंट को समझाता है कि किस तरह से एम्प्लॉय पे इन्वेस्ट करना कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पे आपको ने ये किया है कि एम्प्लॉय पे अपने कभी भी कम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने कंपनी की पॉलिसीज़ को अलाइन करना था तो उन्होंने एम्प्लॉय को भी इसी लेवल पे लिया है ताकि एम्प्लॉय का मोरल डाउन ना हो। इसी तरह से
अगर हम इसमें वैल्यू एडिशन की बात करें तो इसमें एक पेंशन फंड की हम बात करते हैं, ग्रेजुएटी फंड, प्रोविडेंट फंड, फंड मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें। जब हम पेंशन फंड की बात करें तो पेंशन फंड जो है वो इनकी एक कंपनी अलाइन कर रही है, दैट वाज हब पावर सर्विसेज। अब हब पावर सर्विसेज में पेंशन फंड इसलिए था कि ये हबको की एक ONM थी, क्योंकि हबको का जिस तरह से प्लांट होता है वो रेगुलर नहीं चलता, जब रिक्वायरमेंट आती है तो जब चलता है। तो इन्होंने अपने शुरू में एम्प्लॉयज़ ही रखे हुए थे, इन्होंने एक ONM हायर की हुई थी कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो कॉन्ट्रैक्चुअल थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्चुअल को हायर कर लेंगे, प्लांट चलवाएंगे, काम खत्म हो जाएगा तो प्लांट उनको फारिग कर देंगे। लेकिन फॉर द टाइमली जब इन्होंने देखा कि पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, इनके प्लांट्स कंटिन्यूस चल रहे हैं, तो उन्होंने हब पावर सर्विसेज को एक्यूमुलेट किया। लेकिन इन्होंने हब पावर सर्विसेज के एम्प्लॉयज़ को भी का मोरल डाउन नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो वाहिद कंपनी थी जो पेंशन फंड दे रही थी, उनकी ग्रेजुएटी फंड भी कम थे, लेकिन उन्होंने ये किया कि उनको ही हायर कर लिया अपने पास। उनके जो पेंशन फंड थे वो उनकी सैलरी में कंपनसेट कर दिए, उनकी जो डिफाइंड बेनिफिट की पॉलिसी थी उनको डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में कर दिया, ताकि उनके काफ़ी साल से 20-20 साल से 25 साल से उनके जो एम्प्लॉय थे वो हबको के अंडर ही रहें और सेफ फील करें अपने आप को, उनकी जॉब सिक्योर समझें अपने आप को, ताकि वो यहाँ पे सुकून से काम सके और हबको को बेनिफिट दे सके। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।